Several locations across Delhi. There are more breaking updates also coming in of politics that has now broken out. Remember, after the paper leak, it's the airport leak. That's the dig that has come in with the opposition taking on the center, saying first it was paper leaks in the country and now we are hearing reports of airport leaks. So the politics has already begun over the same. My colleague Meenakshi is joining us on the broadcast with the details of the opposition's attack. Remember, over the last few days, the opposition has also been speaking about the paper leaks in the country. The opposition has been saying that the examination papers have been leaked time and again. They've said that the education system has collapsed. They've been cornering the NDA government over the same. In the latest now, after the visuals came in of the airport being completely inundated with roof also collapsing, we're seeing politics yet again break out with the opposition leaders now taking a dig at the government, saying after the paper leak, it looks like it's airport leak, and that's what happened. That's what's happening in the country. So a dig coming in from the opposition over these visuals. My colleague Ankit is joining us with the details. So this is the president of the India Youth Congress, B.V. Srinivas, and he has posted a video of this incident at Delhi, and he's also referenced the one in Jabalpur, and he writes, ever since Modi ji took oath for the third time, destruction in the country has intensified, devastation continues. Yesterday, horrifying pictures came from Jabalpur Airport, and today the roof of Terminal 1 of Delhi Airport has collapsed. Act of God or act of fraud government? So this is the kind of attack that's coming in from the Congress party over these twin incidents, Pratibha, in Delhi and in Jabalpur. Okay, all right. Ankit, thank you for joining us. Politics breaking out, but let's get a live update from Prerit, who is joining us. Prerit, it has been reported from the Delhi airport, and this is where the roof has collapsed. You're seeing it on the screens. The roof completely collapsing. Imagine what a risk it was for the passengers, for the people in the area. There are 6 people who have been injured. These are the visuals of the rescue operations that are currently underway. But a look at it will show you the impact of what could have happened. This is a major tragedy that has been averted. My colleague Prerit is joining us live. He's joining us from the spot. So Prerit, the clearing of the debris now continues, but we're talking about what a big risk it has been for the passengers. Delhi airport is one of the busiest airports in the country. One spell of rains and we're seeing the roof collapsing. अब बिल्कुल देखिए, ये जरूर समझा जा सकता है कि दिल्ली एयरपोर्ट जो है वो देश का सबसे ज्यादा व्यस्तम एयरपोर्ट में से एक है, और यहाँ पे किसी को ये अंदाजा नहीं हो सकता है कि अचानक से छत गिर जाएगी, क्योंकि लगातार यहाँ पे तमाम जो अलग अलग जो टीम है वो मेंटेनेंस की टीम जो है वो मेंटेन करती रहती है इस पूरे इलाके को। साथ ही साथ यहाँ पे तमाम जो अलग अलग एजेंसीज अथॉरिटीज है वो भी अपने सुपरविजन में रखती, ताकि कहीं किसी तरीके से इस तरह की घटना न हो। वैसे में इतने व्यस्तम एयरपोर्ट पे अगर अचानक से अगर जो है वो पूरी छत कोलैप्स कर जा रही है तो कहीं ना कहीं बड़ी बात है। और ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि देखिए, तस्वीरों को देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि काफी दूर तक ये पूरा छत कोलैप्स हुई है, यानी कि एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक, जहां तक कि न जानो कई सारी गाड़ियां उस इलाके में उस जगह पे खड़ी हुई होगी, और साथ ही साथ कई सारे पैसेंजर्स उस इलाके में होंगे। बस गनीमत है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त ज्यादा लोग इसके चपेट में ना आए। 6 लोग इसके चपेट में, और उन 6 लोगों को सही सलामत जो है वो यहाँ से रेस्क्यू करके उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा चुका है, जहां उनका उपचार चल रहा है। लेकिन ये बड़ा हादसा हो सकता था इस तरीके से जिस वक्त ये घटना घटी है, क्योंकि देखिए जो सामने जो बड़े जो लोहे के जो खंभे देख रहे, जो लोहे के जो पिलर्स हैं जो इन छतों को सपोर्ट करते हैं, वो पिलर्स भी सीधे गाड़ियों के ऊपर गिरे, और उस वक्त गाड़ियों में लोग मौजूद थे। कि काफी बड़ी घटना है इस तरह के एयरपोर्ट के ऊपर, जहां पे सबसे ज्यादा लोगों की आवाजाही होती है, और ऐसे में इस तरह की घटना जो है ये कोई छोटी घटना नहीं है। लेकिन सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, और इस पूरे इलाके पे जो है वो मंत्रालय नजर बनाए, उनके तमाम जो अधिकारी हैं वो इस यहाँ पे फिलहाल मौके पे मौजूद है। साथ ही साथ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि देखिए एनडीआरएफ की टीम यहाँ मौके पे मौजूद है, यहाँ पे दिल्ली पुलिस की टीम मौजूद है, फायर सर्विस की टीम मौजूद है, यानी कि तमाम जो अलग अलग जो अथॉरिटीज है उनके यहाँ पे टीम मौजूद है, और वो यहाँ से लगातार जो तमाम जो आप ये डेब्रिस को देख रहे हैं इसे हटाने की कोशिश की जा रही, इस मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है, और पूरे तरीके से खंगालने की कोशिश की जा रही है कि अब अंदर कोई और शख्स न फंसा हो। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि इसकी वजह से यहाँ पे जो पैसेंजर्स है उन्हें काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है वो बारिश की वजह से, और जो पूरी घटना हुई है उसकी वजह से देखिए लोग किस तरीके से सड़कों पे खड़े हैं, और यहाँ पे वो लगातार जो है यहाँ से जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि फिलहाल जब ये घटना घटी उसके बाद से यहाँ पे जो सिक्योरिटी चेक इन का जो वो काउंटर था उसे बंद कर दिया गया। यहाँ पे जो तमाम जो
उड़ानें थी उन उड़ानों को रद्द कर दिया गया है और उसके बाद से यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि एक अव्यवस्था फैली है, जहाँ यहाँ से लोग जो है वापस यहाँ से अपने घर की तरफ जा रहे हैं और कई सारे फ्लैट्स हैं जिनको रिस्केड्यूल किया गया है। यानी कि तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ इंदिरा गांधी एयरपोर्ट के टर्मिनल 1 से, जहाँ पे अचानक से सुबह 5:30 बजे ये जो घटना घटी है और उसके बाद से अब देखिए एक और नया वाहन आया है जो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वाहन है वो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा ट्रैफिक की भी स्थिति हो गई थी तो यहाँ पे कई लोगों ने अवैध तरीके से पार्क भी किया हुआ था गाड़ी को, तो उनको भी अब यहाँ पे हटाने की कोशिश की जा रही है। यानी कि यहाँ जो पूरी तरीके से जो अव्यवस्थाएं फैली उन अव्यवस्थाओं को यहाँ पर हटाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस वक्त सबसे बड़ा जो चैलेंज है एयरपोर्ट अथॉरिटी के लिए वो है कि यहाँ पे इस पूरे डेब्रिज को यहाँ से हटाना है ताकि एक बार फिर से यहाँ पे ऑपरेशन को पुराने तरीके से चालू किया जा सके, तमाम जो उड़ानें हैं वो फिर से यहाँ पे शेड्यूल हो सके। जी Okay, all right. So the Delhi Fire Services received a call at about 5:30 a.m. after which the rescue operations have been underway. Prerit, for the moment, thank you for joining us. The authorities will also be looking at whether this is a rain-related incident or this was due to the structural issues in the Delhi airport. We're keeping If you like this video, then like, share and subscribe to ET Now.